So now we'll study the causes of stroke and atherosclerosis, which is responsible for ischemic stroke, right? Atherosclerosis जो होता है, it is a major contributory factor in cerebrovascular disease. It is characterized by plaque formation. Plaque formation हुआ with an accumulation of lipids, fibrin, calcium. These all are start depositing on the surrounding of arterial wall, on the linings of the arterial wall, and धीरे धीरे करके क्या होता है, that leads to the progressive narrowing of blood vessels. As I told you earlier, कभी भी ये एकदम से इकट्ठा नहीं होता है. It is a slow process जो धीरे धीरे करके आपको अफेक्ट करता है. ओके नाउ जब प्लैक फॉर्मेशन हुआ, अगेन वही क्लॉट फॉर्मेशन होगी. इट विल लीड्स टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक अकर्स एट सर्टेन साइट ऑफ प्री डायलेक्शन. एंड येस, if I am talking about the stroke, so there are some major site जहाँ पे ये जो plaque formation है वो होती है. So that most common sites जो होंगी will let you know soon. These generally include bifurcations, constrictions, dilations or angulations of arteries. Okay, so now I was talking about the most common site for lesions are at the origin of common carotid artery, middle cerebral artery, and at the junction of vertebral artery with the basilar artery. So these are the most common site for lesions if I am talking about the stroke. Now the other causes of having stroke are, अगर मैं बात करती हूँ इस्चेमिक स्ट्रोक की, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलाई फ्रॉम हर्ट वॉल्व्स. वही जब एम्बोलाई, अगर एम्बुलस हर्ट वॉल्व में कहीं बना हुआ है एंड इट डिसलॉज फ्रॉम द हर्ट एंड इट रीच टूवर्ड द ब्रेन, सो इट विल लीड्स टू द इस्चेमिक स्ट्रोक. ओके, हाइपरकोगुलेबिलिटी एंड देन पॉलीसाइथीमिया. ओके, नाउ हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर मैं बात करती हूँ तो देयर इज एनेरिज्म, माइक्रो एनेरिज्म, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, इम्पेयर्ड ब्लड clotting, hypertension. Hypertension is the most important cause या major cause of having hemorrhagic stroke because it creates a pressure. It will lead to the high BP. Okay, so now the risk factors of strokes are hypertension, increased cholesterol level, diabetes mellitus. Why diabetes mellitus? Because as we all know, diabetes mellitus जो होता है majorly it will affect the blood vessels, and smoking inflammatory process start कर देता है. obesity, why obesity? आप physical activity कम करते हो तो it will leads to obesity. obesity की वजह से you have a chances of having diabetes mellitus, and again diabetes mellitus हुआ तो you have the chances कि it will affect your blood vessels. hyperlipidemia, when you have a high concentration of low density lipoprotein instead of having high concentration of high density lipoprotein. So these all are the risk factors. Even there are one more risk factor, I will say oral contraceptives. The females having oral contraceptives, they are at the risk of having strokes. So these are the risk factors. Now we'll study the signs and symptoms of stroke. To remember the signs of stroke, there is a mnemonic FAST. राइट, फास्ट में क्या है, एफ स्टैंड्स फॉर फेस. यूजुअली क्या होता है, वन साइड ऑफ द फेस स्टार्ट्स टू ड्रूप एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू मूव द फेस और टू स्माइल. ओके, ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, इनएबिलिटी टू मूव, स्पेशली हमेशा वन साइड ज़्यादा अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द बायलेटरल. लेग वीकनेस एज वेल. एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्लर्ड स्पीच और पेशेंट माइट complain of having trouble speaking or difficulty in understanding. And T stands for time to call doctor. जब अगर आप किसी भी पेशेंट में ये कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो यू हैव टू एडवाइज हिम और हर दैट यू हैव टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बिफोर इट विल गेट वर्स. ओके, नाउ
सो नाउ विल स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रोक ऑन वेरियस ब्रेन रीजन्स. लाइक स्ट्रोक की वजह से हमारे ब्रेन का जो भी पार्ट अफेक्ट होगा, जो सिम्टम्स आएंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ओनली, राइट. सो फर्स्ट इफ़ आई विल से अबाउट से फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मोटर एरिया डैमेज हुआ है, राइट, इफ़ हमारा जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है डैमेज हुआ है, तो इट विल लीड्स टू दी वीकनेस ऑफ लेफ्ट आर्म, लेग एंड फेस. वाई लेफ्ट? बिकॉज जो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ लेफ्ट साइड, एंड जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ राइट साइड. ओके. नाउ इफ़ आई विल से अगर हमारा ब्रोकाज एरिया डैमेज हुआ है तो इट विल लीड्स टू द स्पीच प्रॉब्लम. इफ़ आई से अगर हमारा जो सेरिबेलम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अगर वो डैमेज हुआ है तो इट विल लीड्स टू दी अनस्टेडीनेस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन. बैलेंसिंग इशूज़ पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको बैलेंसिंग में इशूज़ आ रहे हैं. अगर हमारा वहीं पे लेफ्ट पेराइटल लोब अफेक्ट हुआ है तो इट विल लीड्स टू दी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दी राइट आर्म एंड लेग. ओके. वहीं पे अगर हमारा वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ है तो इट विल लीड्स टू दी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, रीडिंग एंड नेमिंग ऑब्जेक्ट्स. सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. अकॉर्डिंग टू दैट, अगर लाइक से फॉर एग्जांपल जैसे हाँ यहाँ पे ब्रेन स्टेम भी है हमारा, लाइक अगर इफ़ इवन अ स्मॉल स्ट्रोक इन द ब्रेन स्टेम कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स. वाई? बिकॉज जो हमारी नर्व्स होती हैं दैट पासिस हियर, राइट. मतलब ब्रेन से जितनी भी नर्व्स हमारी पास होती हैं वो पास होते होते फाइनली स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं. बट जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के बीच में एक और कनेक्शन होता है दैट इज़ द ब्रेन स्टेम. सो ब्रेन स्टेम से पास होते होते वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं. तो अगर ब्रेन स्टेम में भी कोई छोटा सा स्ट्रोक हुआ तो इट विल लीड्स टू दी सेवरल इशूज़, राइट. सो नाउ दीज आर द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. लाइक अगर हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर अफेक्ट हुआ तो क्या होगा, अगर हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर अफेक्ट हुआ है तो क्या होगा. नाउ से फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा या कुछ भी हम एक्सीडेंट की वजह से कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी उसकी वजह से इंजरी हुई है, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है. बिकॉज जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अराउंड जो फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है वो इस तरह होती है कि वो वाइस वर्सा काम करते हैं. ओके. तो नाउ से फॉर एग्जांपल हमारा राइट ब्रेन में कोई इंजरी हुई तो इट विल अफेक्ट द लेफ़्ट साइड. तो लेफ़्ट साइड में पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट्स करेगा, दीज आर वीकनेस और इट मे बी पैरालिसिस ऑल्सो. ओके. आइदर वीकनेस as we say hemiparesis, so there is hemiparesis or paralysis on left side. पेशेंट वीक को विजन प्रॉब्लम कंप्लेन करेगा. प्रॉब्लम विद द डिस्टेंस, डेप्थ एंड डिस्टिंग्विशिंग फ्रंट एंड बैक, ओरिएंटेशंस वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार. शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम, difficulty with maps, judgment difficulty, problems with ADLs, activity of daily living and picking things up. That means जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पेंसिल एंड आई हैव टू पिक इट अप, तो उन लोगों को पिक करने में भी प्रॉब्लम होता है. सो दीज आर द फाइन मोटर स्किल्स. सो उनमें भी प्रॉब्लम होगा. अगर मैंने बात करी लेफ़्ट ब्रेन इंजरी की तो उसमें हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स होंगे. जो हमारी राइट साइड होगी, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑन राइट साइड, ट्रबल रीडिंग एंड टॉकिंग, मोर स्लो एंड कॉशियस, ट्रबल लर्निंग एंड रिमेंबरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, जल्दी से कुछ न्यू गेन नहीं कर पाएगा, एंड मे नीड मोर इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक टू फिनिश अ टास्क. दैट मीन्स उसको कमांड की ज़्यादा ज़रूरत होगी. सो दीज आर द सिम्टम्स. So now the examinations and investigations which we use to diagnose the stroke. So there are different options. The first one is blood test. In blood test what we will do is we'll check the cholesterol level, we'll check the sugar level and we'll check the blood clotting time, right. So what all we'll check is cholesterol level, blood sugar level, and one more thing, blood clotting time.
ओके। नाउ सेकेंड वन इज़ हमारे पास ब्रेन इमेजिंग टेस्ट आता है जिसमें हम सिटी स्कैन लेते हैं, इंक्लूड होता है हमारा एमआरआई होता है और एमआरए होता है। सिटी स्कैन हम किस लिए करते हैं? टू डिटेक्ट द ब्लीडिंग इन ब्रेन स्पेशली फॉर द हेमरेजिक स्ट्रोक। एमआरआई अगेन डिटेक्ट द डैमेज इन ब्रेन टिश्यूज़, and if I'm talking about the MRA, magnetic resonance angiography, which visualize the narrowing blood vessels. Okay, now we have third one, we have heart and blood vessel test. Okay, in this what we do is carotid ultrasonography, means we'll check the clotting in arteries which leads to the brain stroke. So what I said, carotid ultrasonography. ओके, देन हमारे पास इसमें क्या आता है? लेग अल्ट्रासाउंड। तो लेग अल्ट्रासाउंड में व्हाट विल डू इज़ विल डिटेक्ट द ब्लड क्लॉट इन डीप वेन इन लेग्स एंड क्लॉट मूवमेंट टू ब्रेन लीड्स टू स्ट्रोक। एज आई टोल्ड यू कि अगर हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कुछ इशू है तो वहाँ से क्या होगा, वो क्लॉट डीप वेन से मूव करते करते it can reach toward the heart and it can reach toward the brain as well. So ये find out करना बहुत important है कि उसे already कोई DVT का issue तो नहीं है. Okay, now electrocardiogram. तो electrocardiogram में हम क्या करते हैं? Will identify the problem with electrical conduction of the heart. Okay, so से फॉर एग्जाम्पल अगर अरिदमिया की प्रॉब्लम है, राइट, ऑब्वियसली मे बी क्या पता ब्लड क्लॉट बना हो, ब्लड क्लॉट की वजह से बीपी का इशू हुआ हो और हमारा क्या बोलते हैं एरिथमिया के इश्यूज़ आए हों, सो इट कैन लीड टू द स्ट्रोक्स. मतलब यू हैव टू रिलेट इट. सो विल डू दीज लैब एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस. वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ एग्जामिनेशन की, तो so now we'll study the physical examination. In physical examination we'll take the demographic data, means patient ka basic information like name of the patient, age, gender, address, chief complaint. Then we'll take the history. Then we'll proceed with the vital signs, BP, heart rate, respiratory rate, right? Then we'll assess the sensory part and the motor assessment will do. So in sensory assessment we'll do check the sensations like superficial sensations, deep sensations, cortical sensations. Like अगर मैं बात करती हूँ superficial sensations की, तो it will consist of pain, temperature, touch, right? Then अगर like I talk about deep sensations, तो proprioceptions, 2-point discrimination, kinesthesia, and in combined cortical sensation there is graphesthesia, bragnosis, right? So these are the things we have to assess. Then we'll proceed with the motor assessment. So in motor assessment we'll check the reflexes, we'll check the range of motions, we'll check the tone, like patient flaccid है, किस spastic state में है. So these are the things we'll check. Then cranial assessment. In cranial assessment we'll do the assessment of all 12 nerves, कि अगर कोई 12 नर्व में से किसी भी एक नर्व का अगर फंक्शन भी चला जाता है तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस. ओके, सो दिस इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन. सो टिल नाउ वी डन द stroke का definition, then classifications, then causes, symptoms, then how we'll investigate and what are the examination. Now I will explain you the treatment for the stroke. Okay, सो ट्रीटमेंट अगेन, ट्रीटमेंट डिपेंड अकॉर्डिंग टू द टाइप. ओके, किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है, सो ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. ओके, सो ट्रीटमेंट में इफ़ आई टॉक अबाउट द इस्चेमिक स्ट्रोक, तो इस्चेमिक स्ट्रोक में एज आई टोल्ड यू जो मेजर इशू होता है वो क्लॉट का होता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट? सो टू रिमूव द क्लॉट वी हैव टू ऑप्शंस. आइदर वी कैन यूज़ द मेडिकेशन सो दैट जो क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो जाए, और या फिर बहुत बार जब लार्ज क्लॉट होता है तो उसको फिर हम सर्जरी से ही रिमूव करते हैं. अगर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, तो विल यूज़ द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स. थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो होते हैं दैट विल help in dissolving the thrombus. Okay, then yes, one important thing, हमारे पास एक
ऑल्टीपेज एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ये क्या करता है, इसको हम वेन में इंजेक्ट करते हैं और यूजुअली हम क्या इसको हमेशा वी हैव टू गिवन इट विद इन 4 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ओके, ये क्या करता है, ये क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है एंड इट विल रिस्टोर द ब्लड फ्लो। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड ऑलवेज़ रिमेंबर ये हमें 4 या 4.5 आवर के बाद देना होता है। जैसे आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं उसके 4 घंटे बाद वी हैव टू इंजेक्ट दिस। ओके, देन थर्ड ऑप्शन वी हैव एंटीकोएगुलेंट लाइक ड्रग्स जो कि हमारे ब्लड को थिन कर दें। ओके, सो दैट ईजिली ब्लड फ्लो हो पाए। तो उसमें हमारे पास एस्पिरिन हो सकता है, हमारे पास हिपेरिन होता है, हमारे पास वारफरिन होता है। दीज आर द ड्रग्स विच वी कैन रिकमेंड। देन वी हैव स्टैटिन्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इट ब्लॉक द एंजाइम्स इन लीवर और देन अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। ओके, देन अगर हम बात करते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक की, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। वाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स? बिकॉज हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो मेन कॉज था जिसकी हमने बात करी थी दैट वाज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड ऑप्शन इज़ क्लिप एन्यूरिज्म। देन थर्ड ऑप्शन वी हैव कॉइल एम्बोलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, हियर इज़ वन डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन। ओके, सो इसमें क्या होता है, सी दिस इज़ द आर्टरी। ओके, और ये हमारे पास एक एन्यूरिज्म हुआ है, ठीक है, आर्टरी का। और ये क्या है, वीकन वेसल है तो वो रप्चर हो गई है। ओके, सो दिस इज़ द एन्यूरिज्म एंड ये हमारी जो वेसल है वो रप्चर हो गई है एंड रप्चर हुई है तो हमारा ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, सो नाउ अब कॉइल एम्बोलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो सर्जन होते हैं दैट विल इंसर्ट अ लिटिल ट्यूब इनटू द आर्टेरियल सिस्टम एंड इट विल गेट थ्रेडेड अप इनटू द सेरिब्रल आर्टरीज अंटिल इट बेसिकली राइट इनसाइड द एन्यूरिज्म, मीन्स एट द माउथ ऑफ एन्यूरिज्म। ठीक है, यहाँ तक उस ट्यूब को डाला। देन क्या होता है, देन दिस लिटिल फ्लेक्सिबल वायर जो होगी उसको हम थ्रेड करेंगे। Right, it is threaded in through the tube and it starts to now coil up inside the dilated out part of the artery। ठीक है, क्या होगा, इसके अंदर हमने थ्रेड को इंसर्ट किया, राइट, थ्रेड को ट्यूब के अंदर इंसर्ट करके अब उसने कॉइल करना स्टार्ट किया। देख रहे हो आप, ये कॉइल देन कॉइल देन कॉइल, जो पार्ट हमारा आउट हो रखा है, ये एन्यूरिज्म जो जहाँ पे है ना वहाँ पे इट विल स्टार्ट कॉइल अप एंड देन मोर एंड मोर वायर गेट पुश्ड इन थ्रू द ट्यूब एंड इनटू द एन्यूरिज्म एंड इट जस्ट कॉइल्स एंड इवेंचुअली क्या होगा, ब्लड नाउ कांट रियली एंटर दैट एन्यूरिज्म, वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज हमने इतना ज़्यादा कॉइल कर दिया है कि हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। तो जो ब्लड है इट विल नॉट मूव आउट। ओके, so this is the third option. Then fourth is you will seal और आप सर्जिकल क्लिप यूज़ कर सकते हो। मीन्स से फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरी है, ओके, यहाँ से रप्चर हो गई है तो यू विल इंसर्ट सर्जिकल क्लिप या फिर आप उन दोनों जो वेसल्स जो रप्चर हुई है उनको सील कर दोगे। ठीक है, उनको सील कर दोगे तो ब्लड बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, राइट। देन यस, अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो वी हैव सब एंडार्टरेक्टमी। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, एंड मतलब इनसाइड आर्टरी एंड एक्टमी रिमूवल। ठीक है, तो आर्टरी में से आप कुछ रिमूव कर रहे हो, आर्टरी के अंदर से यू आर रिमूविंग समथिंग। ओके, नाउ जो बेसिक अगर हम बात करते हैं एंडार्टरेक्टमी जो हम करते हैं दैट इज़ कैरोटिड एंडार्टरेक्टमी। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट रन अलोंग ईच साइड ऑफ योर नेक। ठीक है, जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। सो इन दिस हम क्या करते हैं, विल पुट अस इंसिजन इन नेक और कैरोटिड आर्टरी को ओपन करके देन विल रिमूव द फैटी एसिड्स और जो भी प्लेक वहाँ पे जमा हुआ है जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं उस कैरोटिड आर्टरी में से। ओके, नाउ विल प्रोसीड विद द प्रिवेंशंस। ये जो मैंने अभी तक बात करी वो मैंने मेडिकेशन की बात करी, मेडिकेशंस के बाद मैंने सर्जरी की बात करी, बट उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मतलब एज इन सर्जरी तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े उसके लिए यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रिवेंशंस। ओके, अगर हम डाइट की बात करते हैं मतलब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं डाइट की बात करती हूँ तो लो फैट
एंड हाई फाइबर्स इनटेक करो। लो फैट क्यों? बिकॉज जितना फैट कम लोगे उतना ही आप कोलेस्ट्रॉल से बचे रहोगे। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा इंस्टेड ऑफ हैविंग लो डेंसिटी प्रोटीन्स, एंड फर्दर आपके जो भी फैटी टिश्यूज़ होते हैं, प्लैक वगैरह जो बनता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगे उसके चांसेस। देन आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ सो दैट वो आपके ब्लड वेसल्स को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। यू हैव टू मेंटेन द हेल्दी वेट। यू विल चेक इट अकॉर्डिंग टू योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। एक्सरसाइज एंड वॉक डेली। अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड यू हैव टू अवॉइड द एलिसिट ड्रग्स। कोई भी हमारे जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, यू हैव टू अवॉइड दैट। सो दिस इज़ द क्वाड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप अगर इन पे ज़्यादा फोकस करोगे तो you will never get to prone of having any type of disease. Okay, so prevention is always better, so please always keep these points in the mind.